नमस्कार, आदाब। आसनसोल टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं आफरीन हाजिर हूं आज के बुलेटिन के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले स्पॉन्सर्ड बाय डेकोर वॉलपेपर। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। को स्पॉन्सर्ड बाय आरएल के नर्सिंग होम। जनता को इन मुश्किल हालातों में राहत पहुंचाने के मकसद से आरएल के नर्सिंग होम में इलाज के खर्च में भारी कटौती करने का फैसला लिया गया है। ग्लोबल वॉलपेपर। आसनसोल जिला अस्पताल में सीसीयू विभाग में कार्यरत तारकेश्वर के रहने वाले सुदीप थाड़ा को बीते 11 जून को आसनसोल दक्षिण थाने की पुलिस द्वारा एक सेना कर्मी के अपहरण के मामले में शक की बिना पर हिरासत में लिया गया था, लेकिन बाद में देखा गया कि इस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। इस संदर्भ में आज सुदीप ने बताया कि किस तरह से उनको 11 जून को पुलिस अधिकारियों ने बिना कुछ कहने सुनने का मौका दिए बगैर गिरफ्तार कर लिया गया था, और जब वो अपने ड्यूटी पर थे उनको अपने अधिकारियों को खबर देने का भी मौका नहीं दिया गया था और उनको और उनकी गाड़ी को थाने ले जाया गया था। ঘটনাটা শনিবার দিন যে ঘটনাটা ঘটেছে, আমাদের সিসিইউ এর একজন স্টাফকে লোকাল থানা থেকে পুলিশ পরিচয় দিয়ে সিভিল ড্রেসে ওনারা উঠিয়ে নিয়ে যান এবং কোনো একটা কেসের সন্দেহভাজন হিসেবে পুলিশ তার কাজ করতেই পারে, আইন রক্ষার জন্য পুলিশকে অনেক কাজ করতেই পারে। এবং আমরা যারা সরকারি হসপিটালে চাকরি করি তারা সবসময় ভাবি বা সবসময় জানি যে আমরা কিন্তু আইনকে সম্মান করি এবং আইনকে সম্মান করার জন্য তার সঙ্গে সব রকম সহযোগিতা করার জন্য আমরা সবসময় তৈরি রাখি। কিন্তু প্রশ্নটা যেটা এখানে উঠছে আর কি, যেটা আমাদের নিজেদের অস্তিত্বই বিপন্ন বলে আমাদের কাছে মনে হচ্ছে এই কারণে যে আমরা কি এতটাই অসহায় যে আমরা ডিউটি করতে করতে জামা প্যান্ট না ছাড়ার সুযোগ না দিয়ে আমাদের ইনস্টিটিউশনের যিনি হেড তাকে কোনো খবর না দিয়ে আমাদেরকে এভাবে তুলে নিয়ে যাওয়া যায়? এটা কি সম্ভব নাকি? বেসিক ভদ্রতার ব্যাপারটা তো থাকবে। একটা সিসিইউ এর স্টাফ, সিসিইউ এ কারা থাকে, কোন পেশেন্ট, কোন ক্যাটাগরি অফ পেশেন্ট থাকে, সেখানে একজন টেকনিশিয়ান যার কাজ ক্ষেত্র বিশেষে অনেক সময় ডাক্তারদের থেকেও বেশি হয়, তাকে কোনো রকম ইনফরমেশন না দিয়ে, কোনো রকম সুযোগ না দিয়ে, তার রিপ্লেসমেন্ট না করে তাকে তুলে নিয়ে যায়। এত বড় ক্রাইম ও করেছিল, ওকে এত বড় ক্রাইম করেছিল এবং পরে দেখা যায় যে ও কিছু করেইনি। আমাদের এটাই প্রশ্ন এবং আমাদের এটা সবার কাছে আবেদন যে এইভাবে আমাদের হেনস্থা করার কি প্রয়োজন ছিল। পরবর্তী কোনো পদক্ষেপ আপনারা কি নেবেন পরবর্তীকালে? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আমরা তো এটার প্রতিবাদ জানাচ্ছি, আমরা এটাকে ধিক্কার জানাচ্ছি পুরো ঘটনাটাকে। আমরা এটার প্রতিবাদ করার জন্য আমাদের অফিসিয়ালভাবে যেটুকু করার দরকার আমরা নিশ্চয়ই করব। আপনারা এবং সেটাতে কখনোই আমরা আমাদের কাজের হ্যাম্পার করে সাধারণ মানুষকে হয়রান করে কোনো কিছু করবো না। যেটুকু করবো আমরা আমাদের সীমার মধ্যেই করব, কিন্তু এটার আমরা প্রতিবাদ নিশ্চয়ই করব। থ্যাংক ইউ। আমি 11ই জুন বাড়ি থেকে ফেরার সময়, ঠিক আছে, 1:45 নাগাদ আমি ডিউটি জয়েন করি। ঠিক আছে, 1:45 নাগাদ যখন ডিউটি জয়েন করি, একজন ব্যক্তি আমাকে ফোন করেন, থানা বলে যে থানা থেকে বলছি যে আপনার গাড়ির কি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে? আমি বলি না। তখন বলে যে আপনার গাড়ির যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়নি তার জন্য আমরা যাব, আপনার কাছে একটু ডকুমেন্টেশন, আপনার গাড়ির পেপার কি আপনার সাথে আছে? আমি বলি হ্যাঁ আপনার সাথেই আছে। তো আপনারা একটু, তখন পুলিশ অফিসার যিনি ফোনে ছিলেন উনি বলেন যে ঠিক আছে, আমাদের দুজন অফিসার যাবে আপনার কাছে গিয়ে আপনার যে ডকুমেন্টেশনগুলো আছে এগুলো একটু চেক করবে, আপনি কাইন্ডলি একটু কোঅপারেট করবেন। আমি বললি ঠিক আছে, আমি অন ডিউটি আছি, আপনি চলে আসুন শিশুর মধ্যে। বলে ওরা শিশুর মধ্যে আসে, আমাকে বলে যে 2 মিনিট আপনার সাথে কথা আছে। 2 মিনিট কথা বলার নাম করে বলে একটু কাইন্ডলি বাইরে আসুন। বাইরে যখন যাই ওনারা বলে যে নিচে বড়বাবু দাঁড়িয়ে আছেন, নিচে উনি কথা বলবেন। আমি যখন নিচে যাই আমাকে 4-5 জন সব মিলে জবরদস্তি গাড়ি সমেত আমাকে ড্রেস চেঞ্জ করতে দেয়নি। আমার শিশুর চপ্পল ছিল, অন ডিউটি ড্রেস ছিল, ঠিক আছে। সেই অবস্থায় আমি হায়ার অথরিটিকে বলি যে আমি হায়ার অথরিটিকে জানাইনি এখনো।
আমাকে জানাতে দিন, তারপর আপনারা আপনাদের প্রসিড করবেন, ঠিক আছে? তখন উনি বলেন যে আমরা যা ব্যবস্থা করার এদিকে করে নেব, আপনি আমাদের সাথে থানায় আসুন। আমি আমার গাড়ি এবং গাড়ির কাগজপত্র সহ আমাকে থানায় নিয়ে গিয়ে চলে যায় এবং আমার উপর অ্যালিগেশন দেওয়া হয় নাকি। প্রথমে তো ওরা কিছু বলেনি, আমাকে অ্যাক্সিডেন্টের কেস বলে নিয়ে গেছে থানায়, কোঅপারেট করবে বলে। ওখানে গিয়ে আমি জানতে পারি যে আমার গাড়িতে নাকি কোনো আর্মি অফিসার বা আর্মি অফিসারের কেউ পানাগড় থেকে কিডন্যাপ হয়েছে এবং তারা সেই বেসিসে আমাকে তুলে নিয়ে গেছে এবং তাদের সিসিটিভি ফুটেজ নাকি মানে ওরা গেন করেছে যে টোল প্লাজা 12:42 নাগাদ আমাকে সেই ছবি ওরা দেখিয়েছিল। আমি বললাম হ্যাঁ আমার গাড়ি। তখন ওরা বলে যে আপনার গাড়ি এই গাড়িতেই আমরা মানে কিডন্যাপটা হয়েছে, আমরা খবর পেয়েছি। অশ্রাব্য একজন অফিসার এসে অশ্রাব্য গালিগালাজ শুরু করার পর ওরা বলে যে গালিগালাজ করার পর বলে যে একে আগে লকআপে ঢোকাও, তারপর কথা শুনবো। এর মধ্যে কয়েকজন আর্মি অফিসার চলে আসে এবং আর্মি অফিসাররাও সেই একই জিনিস করে, আমাকে বসিয়ে ক্যামেরা অন করে, ফোন ক্যামেরা অন করে আমার বয়ান নেওয়া হয়, আমাকে ইন্টারোগেট করতে শুরু করে। আমি বলি স্যার আমি কিছুই জানি না। তখন ইতিমধ্যে ওদের কাছে বোধহয় একটা ফোন আসে, ফোন এসে ওরা জানতে পারে যে কিডন্যাপার এবং কিডন্যাপ সমেত যে ইয়েটা হয়েছে আর কি, যারা কিডন্যাপ করেছে তারা দুর্গাপুর থেকে সামাও কোথাও থেকে ধরা পড়ে গেছে। তখন ওরা বড়বাবু আমার কাছে এসে বলেন যে সরি ডোন্ট টেক ইট বাই হার্ট। কিন্তু গাড়ি আপনার ছিল? হ্যাঁ গাড়ি আমারই ছিল, আমি ড্রাইভ করে আসছিলাম। তো ওই গাড়িতেই কিডন্যাপ হয়েছিল? না। তাহলে ওই গাড়িটা আইডেন্টিফাই কেন করা হয়েছে? ওরা কোথাও থেকে পেয়েছে সেটা আমাকে বলেনি, সাসপেক্ট করেছে, বলছে টোল প্লাজায় নাকি আমার বাঁশকোপা টোল প্লাজায় নাকি 12:42 নাগাদ আমার গাড়ির সিসিটিভি ফুটেজ পাওয়া গেছে। তো আপনি ওই দিক দিয়ে আসছিলেন কোথায়? আমি বাড়ি থেকে আসছিলাম। কোথায় বাড়ি আপনার? আমার বাড়ি তারকেশ্বর। আমি আচ্ছা। এখানে হ্যাঁ আসানসোল হসপিটালের শিশু স্টাফ। তখন সেই সময় আপনার সঙ্গে কেউই ছিল না, আপনি একাই আসছিলেন গাড়ি নিয়ে? আমি একদম একাই এসেছি, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একাই এসেছি। 3 বছর ধরে যাওয়া আসা করে এইভাবে, না তো কাউকে লিফট দিয়েছি, না কোথাও গাড়ি দাঁড় করিয়েছি, কিছুই না। আমি তো অবাক হয়ে পরে জানতে পারা যায় কি অন্য গাড়িতে? ওরা সেটা আমাকে আর ক্লিয়ার করে কিছু বলেনি। আমার ডিপার্টমেন্টকে না জানিয়ে আমি আমার ডিপার্টমেন্টকে অনেকবার জানাবার চেষ্টা করি, আমার ডিপার্টমেন্টকে ওরা আমাকে জানাতে পর্যন্ত দেয় না। ওরাও জানায়। আপনি আইসিইউর কি পোস্টে কাজ করেন? সিসিইউ হসপিটাল অ্যাসিস্ট্যান্ট। আপনার অ্যাবসেন্স 4 ঘন্টার অ্যাবসেন্সে হসপিটালে কি ক্ষতি হতে পারত? পেশেন্ট মারা যেতে পারতো, কারণ আমি অন এমার্জেন্সি আছি। আমার ডিউটি রিপ্লেস করার মতো কেউ ছিল না। আমাকে না বলে না কিছু করে তুলে নিয়ে চলে গেছে। এমনকি আমাদের অন ডিউটি মেডিকেল অফিসার যিনি ছিলেন ওনাকে পর্যন্ত জানাবার সুযোগটা পর্যন্ত দেয়নি। আমি গাড়িতে যেতে যেতে একটা ফোন কল করি আমার কলিগকে। आज आसनसोल बस स्टैंड के निकट स्कूल के विद्यार्थियों ने पथावरोध कर दिया। इनकी मांग थी कि उच्च माध्यमिक परीक्षा के नतीजों में इनको जो फेल किया गया है उनको पास किया जाए। हाजी कदम स्कूल के एक विद्यार्थी ने कहा कि उनको 317 अंक प्राप्त हुए हैं, इससे उनको फर्स्ट डिवीज़न में पास होना चाहिए था, लेकिन उनको इंग्लिश में फेल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि एक तो कोरोना काल में ठीक से पढ़ाई नहीं हुई, उस पर 1-2 नंबरों के लिए इस तरह से फेल कर देना कहाँ तक जायज़ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी विद्यार्थी सिर्फ अंग्रेज़ी में ही कैसे फेल कर सकते हैं। इस संबंध में जब वो स्कूल से संपर्क करते हैं तो स्कूल की तरफ से उनको कहा जाता है कि वो सिर्फ इन नतीजों का रिव्यू करवा सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। यही वजह है कि आज विद्यार्थियों ने पथराव रोड किया और उनको पास कराने की मांग की। और कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को नो रिव्यू चाहिए, हम लोग का पूरा पासिंग मार्क्स चाहिए और कुछ नहीं। 4 मार्क्स से फेल किया, क्या सारा जिंदगी ऐसे ही बैठे हुए रहे 1 साल के लिए? नहीं चाहिए हम लोग को, हम लोग मेहनत किए, हम लोग को अभी चाहिए पास, हम लोग को पास मार्क्स चाहिए और कुछ नहीं पास। और हम लोग को कॉलेज में एडमिशन भी चाहिए फ्री में, रहमानिया हाई सेकेंडरी निखत परवीन अच्छे से दिए, फिर भी है ना नंबर अच्छे से नहीं मिला। हम लोग को नंबर चाहिए, हम लोग अच्छा क्यों आप लोग ये रास्ता जाम क्यों किए? नंबर चाहिए, हम लोग सब अच्छे से लिखे हैं, सब नंबर चाहिए। हम लोग प्रोजेक्ट सब अच्छे से रात भर बना कर अच्छे से दिए, फिर भी हम लोग नंबर अच्छा नहीं मिला है। तब नंबर चाहिए हम लोग को। सब इतने लड़के को किसी को नहीं फेल करना चाहिए, 1-2 फेल तो होता है, सबको नहीं होता है फेल। रहमानिया हाई स्कूल से आयशा खातून।
एग्जाम दिया रोजा रख के, ऊपर से सब स्टूडेंट इंग्लिश में कैसे फेल हो सकता है? जितना स्टूडेंट है इंग्लिश में ही कम पार्ट है, अदर सब्जेक्ट में बहुत कम है, ज़्यादा इससे जितना स्टूडेंट सब इंग्लिश में है ना है। वजह क्या है कि इंग्लिश में इतना कम पार्ट होने का? और हम लोग कोई तो वजह है। एक तो एग्जाम में इतना हुआ कि 2 साल से पढ़ाई नहीं हुआ, 2 साल से पढ़ाई नहीं हुआ तो अगर 2 नंबर 3 नंबर अगर माने कि कम भी आता है तो 2-3 नंबर आदमी जोड़ेगा। रमजान में 2 साल पढ़ाई नहीं करा के एग्जाम लेगा आदमी, फिर उसमें 2-3 नंबर जोड़ेगा, और स्कूल जाने से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। और जो हाँ, मेरा नाम MD अरबाज है। हम लोग आए हैं इस वजह से कि मेरा नंबर 317 है, ठीक है, इसमें फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए। तो इसमें इंग्लिश में फेल करने का कारण क्या है ये बता सकते हैं? सरकार से हम लोग का ये डिमांड है कि हम लोग को पास किया जाए, ठीक है। मेरा 300 नंबर आके 317 नंबर आके इसमें तो फर्स्ट डिवीज़न हो जाना चाहिए। फर्स्ट डिवीज़न होकर भी मतलब कि हम लोग फेल हो गए। ये सब लोग हम लोग का सब स्कूल का जो टॉपर बच्चा है वो फेल हो गया। इस वजह से इतना बच्चा फेल होने का, 2 साल तो कोरोना काल की वजह से पढ़ाई नहीं हुआ, पढ़ाई ना होने के बाद भी इस तरह से फेल किया जाएगा तो बच्चा किस तरह से पढ़ेगा? अगर वो नहीं पढ़ना है, अगर सरकार चाहता है कि बच्चा जाहिल मरे तो सरकार को चाहिए कि स्कूल बंद करा दे हमेशा के लिए, वो स्कूल को बंद करना जरूरी है। अब कौन स्कूल से हैं? हम आसनसोल रेल पार ओके रोड हाजी कदम स्कूल से हैं। ये आप लोग रास्ता अवरोध क्यों किए? रास्ता अवरोध इसलिए हम लोग किए हैं क्योंकि हम लोग का रिजल्ट इतना ख़राब आया है कि हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग को बोलने के लिए कुछ मौका ही नहीं मिल रहा है। और हम लोग का स्कूल में कांटेक्ट कर रहे हैं तो स्कूल वाला बोल रहा है कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं, रिव्यू करा सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। तो हम लोग इसमें क्या करें, आप बता सकते हैं? मेरा नाम मोहम्मद कासिफ कलाम। पहले तो रमजान के टाइम आसनसोल दक्षिण थाना अंतर्गत उषाग्राम के ग्वालापाड़ा इलाके में बीती रात एक घर को डकैतों ने अपना निशाना बना लिया। घर के मालिक रतन यादव ने बताया कि कुल 6 सशस्त्र अपराधी उनके घर आए और 1,15,000 रुपए नकद और सोने के गहने चुराकर फरार हो गए। उन्होंने बताया कि रविवार रात को कुछ नकाबपोश लोगों ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। उन्होंने रतन यादव से कहा कि उनका स्टीयरिंग बॉक्स खराब हो गया है। ये सुनकर जब रतन यादव ने दरवाज़ा खोला तो अपराधी घर के अंदर घुस गए और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लाइट ऑफ कर दी। उसके बाद अपराधियों ने एक एक कमरे की तलाशी ली। कमरे में रखी अलमारी को भी रतन यादव से ही खुलवाया गया। अलमारी के अंदर की लॉकर को भी रतन यादव से ही खुलवाया गया और उसमें रखे करीब 1,15,000 रुपए नकद और गहने छीन लिया। उसके बाद जब वो जाने लगे तो उन्होंने रतन यादव को पीटा भी। इसके बाद अपराधी घर का दरवाज़ा बाहर से बंद करके फरार हो गए। रतन यादव ने कहा कि 4 अपराधी घर के अंदर आए थे और 2 घर के बाहर थे। उन्होंने कहा कि अपराधियों के हाथ में बंदूक, अपराधियों के वहां से चले जाने के काफ़ी देर बाद रतन यादव ने अपने रिश्तेदारों को फ़ोन किया। क्या हुआ था? रात में आदमी आया, दरवाज़ा ठोका, हमको बोला कि स्टीयरिंग बॉक्स फेल हो गया, मेरा स्टीयरिंग फेल हो गया। हम दरवाज़ा खोले के बाद 4 आदमी अंदर आ गया। अंदर आने के बाद दरवाज़ा लगा दिया, लाइट ऑफ कर दिया। लाइट ऑफ करने के बाद पहला ये रूम खुलवाया है, ऊपर ये रूम खुलवाया है और रूम खुला हुआ ही था। फिर इस रूम में घुसा है, चाबी हमसे मांगा है, चाबी दिए। चाबी देने के बाद अलमारी हमसे भी खुलवाया है। जितना सामान था सारा सामान हमको बोला निकाल दो। जो अलमारी में छोटा लॉकर होता है उसको खोले हैं, उसको हम नहीं खोले तो तुमको गाली बका है। गाली बकने के बाद हम उसको खोल दिए। खोलने के बाद जितना उसमें सारा लेडीज़ का जो पैसा वैसा था लेके दिया है। लेके जाने के बाद जब जाने लगा तब मारपीट किया वैसा, समझे ना? तो क्या वो लोग के हाथ में कुछ था ऐसा? हाँ, सामान था। क्या था सामान? गेट खोला है तब हमको सामान सटा दिया है। अच्छा। सटाने के बाद फिर गेट लग 4 आदमी अंदर आया और 1-2 आदमी बाहर में था, समझे ना? फिर जब मारा तो हम यहाँ गिर गए हैं। गिरने के बाद बहुत देर तक हम यहाँ बैठे हुए थे। हमको बोला कि वो गेट से बाहर जाए तो गोली मार देंगे। उसके बाद बहुत देर बाद हम अपना भाभी को फ़ोन किए और मेरा भाई लोग बगल में रहता है। जब आदमी लोग का आवाज़ सुने, हम समझे सुबह हो गया तो 4 बजे के करीब में फ़ोन किए। फिर मेरे भाभी लोग आया तो बाहर से वो लोग दरवाज़ा लगा दिया था। बाहर से दरवाज़ा लगा के चला गया था बस। तो क्या क्या लेके गया है? कुछ सामान पैसा ले गया है, लेडीज़ का जो जेवर वेवर होता है वो ले गया है। लगभग कितना मिला जुला? पैसा मेरा करीब 1,10,12,000 रुपया था।
सोना था, लेडीज़ का जो शादी में मिलता है, बस यही सब था। अच्छा, घर में कितना परिवार रहते हैं आप लोग? घर में हम अकेले हैं यहाँ। सब मेरा परिवार, वाइफ और मेरा बच्चा सब बिहार में है। मेरा भगनी का शादी था, मेरा छोटा भाई भी दिया था, तो वो कल परसों आया है। मेरा वाइफ 18 तारीख को आएगा। आज मतलब मेरा मामा का वहाँ शादी है 15 तारीख को, तो वो बोला शादी अटेंड करके आएगा, समझे ना। रानीगंज थाना अंतर्गत मंगलपुर इलाके में स्थित पटियाला ढाबे के ऊपर इंडिया पावर लिमिटेड का हाईटेंशन तार टूटकर गिर जाने से एक वाहन चालक की घटनास्थल पर मौत हो गई। घटना के बारे में ढाबे के मालिक मनजोत सिंह ने कहा कि निजी बिजली कंपनी इंडिया पावर का हाईटेंशन तार उनके ढाबे के ऊपर से गुजरा है। उन्होंने बताया कि इस बाबत कई बार इंडिया पावर कंपनी से इस तार की मरम्मत को लेकर बात की गई है, लेकिन उन्होंने इस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की। आज अचानक हाईटेंशन तार टूटकर इनके ढाबे के ऊपर गिर पड़ा। उस वक्त वहां तेजेंद्र पाल सिंह नाम का एक वाहन चालक बैठा हुआ था, जो कि उस बिजली के तार की चपेट में आ गया, जिससे उनकी मौत हो गई। क्या हुआ था? आज सुबह 4:30 पौने 5 बजे के लगभग तो यहाँ पे हाई एक्सटेंशन तार जाती है हमारे होटल के ऊपर से। तो बार बार इनको पहले से बोला गया था कि यहाँ पे कुछ कौन सा, किसका है हाई टेंशन तार, किसका है? इंडिया पावर का। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो वो आज गिर गई ऊपर हमारे ये शेड के ऊपर में। अच्छा, तो शेड के ऊपर गिरी तो हमारा एक यहाँ पे कोई ड्राइवर था, यहाँ पे बैठा हुआ था। तो यहाँ पे बैठा तो उसको करंट पकड़ लिया है, टान लिया अपने तरफ। ये हमारा ये शेड का ये जो पिलर है, इसमें लोहा का पिलर था, तो उसकी उसको डेथ हो गई यहाँ पे। उसके बाद उसके बाद पुलिस आई, पुलिस अपना काम की डेड बॉडी लेकर गई। और लेकिन ये इंडिया पावर वाले जो कर्मचारी है, उनको बार बार फ़ोन किया गया। ये लगभग 2-2.5 घंटे बाद आए हैं। और 2-2.5 घंटे बाद आने के बाद इनका तेवर ही कुछ अलग है कि क्या बोल रहे हैं? मतलब कोई अच्छा से कोई तरीका से बात नहीं कर रहा है। एक होता है कि चलो हाँ गलती हुई है, इनके ऑफिसर जो आए हुए हैं वो मतलब कोई सही तरीका, मतलब एक होता है बात करने का, वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। ऊपर से पूरे हमारे आदमी आएंगे, अभी तक देखिए टाइम हो गया 10 साढ़े 10 हो गया, अभी तक इनका कोई ऊपर का सीनियर कोई बंदा नहीं पहुंचा है यहाँ पे। और उसके बाद इनको हम लोग 2 डिमांड किए हैं। एक तो हमारे यहाँ पे सेफ्टी का कीजिए, ऊपर में जो तारें गई हैं उसका कुछ सेफ्टी कीजिए। अगर आज एक बंदा मर रहा है, कल फिर अगर गिरेंगे कल 10 और मर सकते हैं। और दूसरी बात है, जिसकी डेथ हुई है उसका हम लोग को कुछ ये मुआवजा चाहिए। ड्राइवर का नाम क्या था? तेजेंद्र पाल सिंह। कहाँ के थे वो? पटियाला, पंजाब। आपका नाम? मेरा मनजोत सिंह। परिचय? मैं यहाँ सियारसोल राजमोड़ से सटे नेशनल रोड नंबर 60 पर सड़क जाम कर स्कूली छात्राओं से लेकर अभिभावकों तक सभी ने धरना प्रदर्शन में हिस्सा लिया। पुलिस प्रशासन के सामने बड़ी संख्या में हाई स्कूल के छात्राओं ने दावा किया कि वे बड़ी संख्या में छात्राओं के परिणाम असंपूर्ण है। स्कूल परिसर में एक प्रदर्शन के बाद उन्हें सूचित किया गया था कि उन्हें एक परिणाम पीडीएफ में भेजा गया था। रविवार को छात्राएं विक्षोभ कार्यक्रम में शामिल हुए और फिर रानीगंज के कई स्कूलों के छात्राओं ने सियारसोल राजबाड़ी मोड़ पर राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 60 को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने छात्रों को सभी मुद्दों की जांच कर तुरंत परीक्षा पास कराने की मांग करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया। आधे घंटे से भी ज्यादा समय से ये जाम चला। তো আমরা গিয়েছিলাম, তো একটাই বললো যে তোমরা খাতা রিভিউ করাও। আমরা বললাম যে আমাদের শুক্রবারে আমরা এসেছিলাম, তো শনিবারে এসেছিলাম, তো শনিবারে দিরা বলেছিল যে আমরা এখন আসতে পারবো না, আমরা এখানে রোদে দাঁড়িয়েছিলাম, তাও দিরা আসেনি। তো শনিবারে দিরা বললো 20 তারিখের আগে রেজাল্ট দেখাতে পারবো না। তারপরে দেখি বলেছিল যে রবিবারে দেখি রাতারাতি রেজাল্ট চলে এলো। তো এটা এলো কি করে? যখন আমরা জিজ্ঞাসা করছি দিকে, তখন দি বলছে মেলে পাঠাইছে। মেলে পাঠালে কি করে? দি বলছে 20 তারিখ তোমরা ওয়েট করো, ওই রেজাল্টের পরেও বলছে 20 তারিখ তোমরা ওয়েট করো, 20 তারিখে তোমাদেরকে দেখানো যাবে যে ওই রেজাল্টটা দেখানো যাবে যে তোমরা ফেল করেছো না পাস করেছো। তো আমরা বললাম এই কাজটা কে নেবে? आज जमुड़िया के काटागोड़िया मोड़ स्टेट बजोड़िया वृद्ध आश्रम में संस्था के अध्यक्ष ओम प्रकाश बजोड़िया द्वारा 7 गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया गया। साथ ही उनको रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली घरेलू सामग्रियां भी प्रदान की गई। इनमें
पलंग, बाल्टी, कुकर, अलमारी प्रमुख थे। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, वाणिज्य संगठन फॉस्बिकी के अध्यक्ष आरपी खैतान, सचिव सचिन रॉय, उनकी पत्नी मीता रॉय, दुर्गापुर के मेयर आनंदिता मुखर्जी, तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद की महिला वाहिनी रक्षक ब्लॉक 1 झिलिक चैटर्जी आदि उपस्थित थे। আটখানা মহিলাদের আমাদের এখানে বিয়ে হচ্ছে কন্যাদের, প্রত্যেক 2 মাস অন্তরে 1.5 মাস অন্তরে এই ধরনের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। আমার সৌভাগ্য আমি এনার সাথে জড়িত, আমি দাদা এনার, তবে ইনি আমাকে একটা আদেশ করলেই আমাকে এখানে আসতে হয়। দারুণভাবে ইনি কিভাবে যে একটা পাগলের মতন কাজ করেন। তাদের আটখানা মহিলাদের আমাদের এখানে বিয়ে হচ্ছে কন্যাদের, প্রত্যেক 2 মাস অন্তরে 1.5 মাস অন্তরে এই ধরনের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। আমার সৌভাগ্য আমি এনার সাথে জড়িত, আমি দাদা এনার, তবে ইনি আমাকে একটা আদেশ করলেই আমাকে এখানে আসতে হয়। দারুণভাবে ইনি কিভাবে যে একটা পাগলের মতন কাজ করেন। তাদের ये थी आज की कुछ अहम खबरें। देखते रहिए आसनसोल टाइम्स और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें ताकि शिल्पांचल की हर तरह की खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।